Hello, sir. How are you? I'm good. How are you? I'm good, sir. I'm good, sir. I hope everyone in the family is healthy right now. Yes, absolutely. All your All blessings right. and well wishes. Tell me. Thank you. So I have already introduced you to our audience, sir. So I will again introduce you once more. Okay. So it is my privilege to introduce Dr. Vaibhav Garg, an endodontist who has been a senior mentor, and we Okay. we have had a very beautiful professional journey till now. And I love Yes. the fact that we talk our talks take up a lot of time, and we have to be very careful about the whole time slot, because if we start talking, the time keeps on going on. Right. So so sir is an endodontist, and he's an academician by heart, and he is an educator of endodontics, and he takes workshops, as well as he's a practicing endodontist in Ghaziabad. Uh, and sir brings to the table a lot of wisdom, a lot of philosophical, and a lot of realism also. So at times when I'm just being a little astray with whatever the realities of life, sir has always been there to guide me. So thank you for being here, sir. It's an honor and privilege. So, and I would like to start off the whole introduction of the whole series. I've already briefed people about it. So this is the Oral Health Channel Facebook Live series called Let's Talk, where I will get esteemed guests and dentists of all specialties who are experts in the subject matters, and we will talk about the topics that are required to be addressed towards our patients. This is a complete that we are doing because we know that we require, and especially at these times, COVID times, that we need to take care of our health to whatever extent we can do it. So, sir, welcome. Okay. Thank Thank you so much, Rudra. Hope I'm audible right now. Yes, sir. This Yes, sir. You're is audible. for me also. This is a live session for the first time. Uh, we do a lot of webinars, and webinars go in a very different manner. And Facebook Hmm. live session is, I guess, it will be a very good stepping stone for both of us as a experience adding tool. So first of all, I would thank Rudra for inviting me actually, and this is like another chat session that we both have most of the times. But the whole intention that Rudra shared with me was we should always do something for the patients that are actually attached to us, but are have not reached our clinics till now, and they do have certain myths in their heads. uh, Hopefully we can convert the entire conversation into bilingual and mostly Hindi, Yes. because जी जी वो right. अंडरस्टैंडिंग बहुत आसान हो जाती है जी और हम जी सबके लिए जो right. हमारे कॉमन पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा. तो जी जो टॉपिक चूज किया गया था वो इतना बेसिक है, डेंटल पेन, और वो इतना वास्ट है कि अगर हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू करते हैं तो शायद 7-8 घंटे तक लगातार बात कर सकते हैं. हम सबके पास right. टाइम का कंस्ट्रेंट है बहुत ज़्यादा, हम सिचुएशन में बात नहीं कर पाएंगे. बट हम कुछ कॉमन जी टॉपिक्स, कुछ कॉमन मिथ्स को पिकअप करेंगे. हम्म, पूरा फोकस इस बात पे रहेगा कि अगर पेशेंट अपने डेंटल पेन को रिकॉग्नाइज कर पाए तो वो कब अपने डेंटिस्ट से बात करें, या उन्हें अपने डेंटिस्ट के पास कब अप्रोच करना चाहिए. अगर वो जी ऑलरेडी एक डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, किसी ट्रीटमेंट के अंदर हैं, और तब भी पेन बना हुआ है, तो उसे कैसे परसीव करना है और उसके बारे में क्या right. इंफॉर्मेशन निकालनी है. फॉलोड बाय, जी अगर आप ऑलरेडी डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, ट्रीटमेंट खत्म हो चुका है, आपका एक बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप है, but after a very long gap of 3 months to maybe 3 years or 7-8 years, now you have pain in the previously treated tooth. अगर कुछ ऐसा पेन हम्म, है जो पहले के ट्रीट हुए हुए दांत में है,
तो हमें क्या करना चाहिए, हमने इसी प्रेमाइस में पूरे कन्वर्सेशन को रखने की कोशिश करेंगे और लेट्स सी कि हम कितना बेनिफिशियल कन्वर्सेशन क्रिएट कर पाए अपने पेशेंट्स के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जी डेंटल पेन एक सबसे बड़ा रीजन है जब कोई पेशेंट डेंटल ट्रीटमेंट को सीख करता है या डेंटल क्लिनिक में आता है या डेंटल हॉस्पिटल में आता है या डेंटल कॉलेज में जाता है। राइट तो ये सबसे बड़ा राइट कारण होता है किसी भी पेशेंट के लिए अपने डेंटल फिजिशियन को या डेंटल सर्जन को, अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट को अप्रोच करने का। जी मोस्टली जो लोग डेंटल पेन से गुजर रहे होते हैं उनको बताना चाहूंगा कि जो डेंटिस्ट होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं डेंटल पेन्स को रिड्यूस करने के लिए। किसी भी तरह की और मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी या मेडिकल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स स्पेशलाइज्ड नहीं होते, सिर्फ डेंटल सर्जन्स और जो मास्टर्स होते हैं वो लोग हेल्पफुल होते हैं इस तरह के पेन को कंट्रोल करने। तो जब भी आपको बहुत एक्सट्रीम डेंटल पेन हो, आपको अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट को एक बार जरूर अप्रोच करना चाहिए। अब हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जा रहे हैं कि डेंटल पेन कब होता है, किस लेवल का जी होता है, कैसे, क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से हो सकता है, एज अ पेशेंट हमें क्या करना चाहिए और उसका जी अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है। तो जी लेट मी स्टार्ट विद अ पॉइंट कि डेंटल पेन यूजली एक अलार्म क्लॉक की तरह है जो आपको इन्फॉर्म जी कर रहा है कि आपका आपका ओरल हेल्थ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है, कहीं ना कहीं आपके ओरल हेल्थ में कुछ वॉइड्स हैं या कुछ कमी है और जी उसकी वजह से डेंटल रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कोई ब्लड वेसल या कोई गम्स या कोई बोन का इन्फेक्शन हो गया। जी तो हम उसे राइट बहुत मेजर तरीके से हम लेके चल रहे हैं। अब जी डेंटल पेन कुछ कारणों से डेंटल कैविटीज की वजह से होता है। मैं दिखाना चाहूंगा कि होता क्या है यूजली। डेंटल अगर हम टूथ स्ट्रक्चर को देखें तो यूजली टूथ राइट स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं जो पिंक कलर के दिख रहे हैं स्ट्रक्चर में। ये एक मॉडल है और बहुत छोटी छोटी कैविटीज हैं। जो ब्लैक पार्ट आप देख पा रहे हैं, इट्स ए स्मॉल कैविटी। यस एंड जब ये कैविटी थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाती है और ब्लड वेसल्स के आसपास होती है या उसको इंट्रूड कर चुकी होती है, उसके अंदर अटैक कर चुकी होती है, तब आपको जी मोस्टली डेंटल पेन की अवेयरनेस आती है। ये सबसे कॉमन कारण है डेंटल पेन में भी। डेंटल पेन को हम अलग अलग कारणों से जानते हैं। कभी जी डेंटल पेन नर्व्स की वजह से होगा, कभी गम्स की वजह से होगा, कभी ट्रॉमा की राइट वजह से हो सकता है। ट्रॉमा मतलब किसी जी तरह की चोट जो चोट अनवांटेड थी और अचानक से हो गई। कभी जी स्पोर्ट्स खेलते हुए बच्चों को, लोगों को, अगर बास्केटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं और बहुत हाई इम्पैक्ट की कोई चीज आके फेशियल हिस्से में लगती है तो पेन हो सकता है। राइट बॉल लग सकती है। कभी कभी जो हमारे इम्पैक्ट स्पोर्ट्स होते हैं या जो ऐसे स्पोर्ट्स हैं कॉन्टैक्ट जिसमें स्पोर्ट्स फाइट इन्वॉल्व होती है, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होते हैं, राइट उनमें भी यस कभी कभी चोट इस तरीके से लगती है, जैसे बॉक्सिंग, ताइक्वांडो या फाइट जो भी है, उसमें कभी कभी जी ट्रॉमा चोट लगने की वजह से होता है। दूसरा, जी एक और कारण है जिसमें हम बहुत नेग्लेक्टेड तरीके से, अगर साइनस में इन्फेक्शन है, साइनस राइट साइनसाइटिस हो राइट गया, जी तो भी जी ऊपर के जॉ के दांत दुखते हैं। दांत में ये दर्द एक और होता है कॉमन जी कारण है। कभी कभी राइट स्ट्रेस की वजह से मसल्स हमारे इन्वॉल्व हो जाते हैं और ये राइट पेन ऐसा दिखता है कि दांतों में है, ऐसा महसूस होता है दांतों में है, बट ये नॉन ओडोंटोजेनिक नो पार्ट ओडोंटोजेनिक होता पेन है, यानी जी जिनका जी डेंटल रिलेशन है से बट वो डेंटल हाँ ओरिजिन नहीं। रिलेशन है ओरिजिन बट नहीं ओरिजिन नहीं। राइट तो ये जी उस कारण से भी हो सकता है। तो मैं केरीज वाले पार्ट को लेके चलता हूँ बिकॉज वो सबसे ज्यादा इजी है समझने के लिए। और जी 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 मोस्टली मतलब अगर हमारा 80-85% पेशेंट का जो पेन का कॉज होता है वो मोस्टली कैविटीज की वजह से होता है। डेंटल जी कैविटीज इतना कॉमन वर्ड है इंडियन सोसाइटी में या अक्रॉस द वर्ल्ड, ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है, बट हिंदी में उसे बोलते हैं कि दांत में कीड़ा लग गया। बहुत सिंपल। जी तो राइट दांत में से कीड़ा निकालने की कोई दवाई नहीं है।
सभी लोग जानते हैं, एग्जैक्टली। बट कुछ कुछ कम्युनिटीज में, या हम कह सकते हैं कि कुछ विचारों के हिसाब से लोग कहते हैं कि हम औषधि खाकर या किसी तरह जी की जड़ी बूटी का धुआं मुंह में लगाकर कैविटी या दांतों में लगे हुए कीड़े को बाहर निकाल सकते हैं, हम उसे तैरता हुआ दिखा सकते हैं। या कुछ लोग कहते हैं कि मैं दांत में किसी तरह का तेल लगा सकता हूँ और उससे कैविटी बाहर आ जाएगी। जी। ये सब मिथ्या है, नुस्खे। इसको ज्यादा राइट। फोकस ना करें। मेरा मानना ऐसा है कि अगर हम प्रोफेशनली देखें और हम समझें कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है या साइंस क्या है, तो हम ये जानते हैं कि दांतों के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, और ब्लड वेसल्स पे अगर अटैक करती है कैविटीज तो हमें पेन होता है। ये जी एक तरीके का गैस चैम्बर बन जाता है, या जैसे प्रेशर कुकर कह सकते हैं सादी भाषा में, जी। एक प्रेशर कुकर सिचुएशन होती है। अगर ब्लड वेसल्स के ऊपर अटैक हो रहा है कैविटी का या बैक्टीरिया का, और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है, तो वो क्या करता है कि जी प्रेशर बढ़ाता है। इन्फ्लेमेशन मतलब कि किसी तरह का दबाव पड़ जाना है, या जो हमारी धमनियां हैं, जो हमारी वेन्स और आर्टरीज होती हैं, उनका जी जी जो नेटवर्क है वो इन्वॉल्व हो गया। जी तो जी उसमें एक प्रेशर बिल्डअप सिचुएशन होती है। कुछ लोगों को जी जी सालों साल तक पेन नहीं पता लगता। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे जी थोड़ी थोड़ी सेंसिटिविटी होती है, और मुझे ठंडा पानी या गर्म पानी पीने में परेशानी हो रही है। और जब हम जी पानी पीते हैं तो एक एक्यूट पेन होता है, सिवियर पेन होता है। और जब हम पानी गटक चुके होते हैं, गले के नीचे चला गया, या चाय हमारी खत्म हो गई, या कॉफी खत्म हो गई, या जी सूप या दाल जब भी हम पीते हैं और उसकी वजह से दर्द हुआ है, अगर हम वो उसका सेवन बंद कर दें तो हमारा पेन कम हो जाता है। दिस इज द जी राइट टाइम यू शुड अप्रोच द डेंटिस्ट। इसके बियॉन्ड जी कुछ ऐसे इमरजेंसीज क्रिएट हो सकते हैं जिसमें जान भी जा सकती है। जी ऐसी जी बिल्कुल सिचुएशन सही को बात बोली। ल्यूडविग एंजाइना बोलते हैं। जी अगर आपका डेंटल पेन सही समय पे डेंटिस्ट द्वारा नहीं देखा जाए, या आप उसे इग्नोर करें, तो नीचे यहाँ पे कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिसे सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स होते हैं। अगर वहां पे जी किसी वजह से इन्फेक्शन पहुंच जाए, तो उस बड़े इन्फेक्शन को सेल्यूलाइटिस का नाम दिया गया है। और जब जी सेल्यूलाइटिस होते हैं और मेजर स्पेस जो मसल्स के बीच की जगह है, अगर यहाँ पे इन्फेक्शन फैल जाए तो कभी कभी सूजन आ जाती है, काफी सिवियर सूजन आ जाती है, जी और वो हमारी सांस की नली पे भी इम्पैक्ट डाल सकती है। ये जी बहुत रेयर सिचुएशन है, बट सबसे सिवियर सिचुएशन। तो हमें क्या करना जी जी चाहिए, जो कैविटीज हैं उनको नियमित तौर पे अपना डेंटल चेकअप हमें कराना ही चाहिए। और राइट। कैविटीज को जिसमें आपको खाना फंस रहा है, जैसे नॉर्थ इंडिया में जिस जोन में हम लोग रहते हैं, इस जोन में अमरूद बहुत कॉमन फ्रूट है। उसका बीज जी कभी सर। कभी दांतों में फंस जाता है। जो राइट राइट। वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियंस हैं, उनको लगता है कि उनके खाने का कोई हिस्सा जो रशेदार फूड है, जैसे धनिया, जी पालक, जी पुदीना, चिकन का फ्लैश या फिश का कुछ हिस्सा, अगर वो दांतों के बीच में बहुत फ्रिक्वेंटली फंस रहा है, और आपको बार बार किसी चीज की मदद से, जैसे कोई पिन, कोई टूथपिक। आपकी टूथपिक, या आप जी कुछ लोगों को मैंने विजिटिंग कार्ड के कोनों को यूज करते हुए देखा है, अगर ये बहुत फ्रिक्वेंटली हो रहा है, दैट मीन्स इट इज अ गुड टाइम टू विजिट योर डेंटिस्ट। ऐसा जी होता क्यों है कि कैविटीज के बाद हम हमें डेंटिस्ट को दिखाना है और हमारा दवाइयों से कोई राहत नहीं मिलती है? कारण जी ये है कि जो डेंटल ब्लड सप्लाई है, वो मदर नेचर ने, या हम गॉड कह सकते हैं या ऑलमाइटी कह सकते हैं, जिसे भी हम रेफरेंस देना चाहें, उन्होंने ऐसा बनाया है कि सिर्फ वन वे ऑफ ब्लड सप्लाई है। दैट मीन्स जी कि uh, अगर हम कोई भी और बॉडी पार्ट लेते हैं, वहां पे लिम्फ नोड्स या हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ज्यादा एक्टिव होता है। और जी अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो हम एंटीबायोटिक्स देकर उनको वहां उस इन्फेक्शन के जोन तक एंटीबायोटिक का जी। असर पहुंचा सकते हैं ब्लड के थ्रू। मगर एंड जी, जो यहाँ पे ब्लड, फ्लश आउट होने का जैसे भी चांस कम रहता है जैसे इन दिस सिस्टम, अगर आप हमारा माने तो। लिवर या लंग्स या पैंक्रियाज या बॉडी का कोई भी हिस्सा जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, वहां पे हम्म, ब्लड जाने का एक रास्ता है और वहां से एग्जिट करने का एक अलग रास्ता है। बट डेंटल के साथ प्रॉब्लम ये है कि डेंटल टिश्यूज में जो भी ब्लड सप्लाई जाती है, जो डेंटल टूथ जी जाती है, वो सिंगल साइडेड है। जिस रास्ते से राइट। ब्लड सप्लाई जा रही है, उसी ओरिफिस के थ्रू
लौट के, जैसे हम वापस। दांत का जी एपेक्स भी जी बोलते हैं, अगर दांत का एपेक्स जी ये है तो यहीं से ब्लड सप्लाई अंदर जा रहा है और इसी जोन से बाहर आ रहा है। तो जी। जब राइट। नेक्रोसिस शुरू होता है, नसों का इन्फेक्शन शुरू होता है, या इन्फ्लेमेशन या प्रेशर बिल्डअप शुरू होता है, तो जी। ये इस तरीके से प्रेस हो जाती है और हम्म, किसी भी तरह का कोई एंटीबायोटिक नहीं पहुंच पाएगा, या कोई दवाई का असर दांत की नसों के अंदर, जहां जहां पे इन्फेक्शन हुआ है, वहां जी। तक एंटीबायोटिक नहीं पहुंचेगा। तो हम्म, एंटीबायोटिक डेंटिस्ट क्यों देते होंगे? अगर डेंटिस्ट देते हैं तो डेंटिस्ट एंटीबायोटिक इसलिए देते हैं कि जो दांत के आसपास का एरिया है उसको हम एक तरीके से प्रिवेंशन दे सकें हम्म, एंटीबायोटिक, हम उसको एक तरीके से आइसोलेट कर सकें। आज की डेट में अगर मैं जी आइसोलेट वर्ड या आइसोलेशन बोलूंगा तो हर कोई समझ सकता है। ये जी 2020 का वो वर्स्ट टाइम है जब कोविड सबसे ज्यादा हमारे ऊपर हावी है, और आइसोलेशन एक ऐसा वर्ड है कि हम अलग करते हैं या किसी चीज को कोने में कर देते हैं या उसे जी बाकी चीजों से कट ऑफ कर देते हैं। तो जो एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं डेंटल पेन में, वो उस दांत के एरिया को ऑलमोस्ट आइसोलेट करते हैं, या कि वहाँ की फर्दर इन्फेक्शन आगे बॉडी में ना फैले, या जो हमारे मसूड़ों का एरिया है उसमें ना जाए। जी कुछ इस तरीके से मसूड़ों का एरिया होता है, जी। इसमें यहाँ पे बोन होती है, राइट। जो बोन है, तो एंटीबायोटिक यहाँ पे एक तरीके का शील्ड क्रिएट करता है और जी जी रोकता है बिल्कुल। दांत के इन्फेक्शन को बोन में जाने के लिए। अपार्ट फ्रॉम इट, एंटीबायोटिक्स किसी तरह के फीवर को, या जब लिम्फ नोड्स कमजोर हो जाते हैं तो जी, उनको सपोर्ट करता है कि आपके इन्फेक्शन को थोड़ा और लड़ सके। ये बट बेसिकली इट्स लाइक मेडिकेशन, कवर फायर जो हम बोलते हैं, यस, कवर आर्मी की फायर टर्म्स या में अगर बोले। इम्यूनिटी बोलते हैं। जी यस। जी जी तो जी हम एंटीबायोटिक्स पे डिपेंडेंट नहीं है ट्रीटमेंट के लिए। एंटीबायोटिक्स लेना ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आपकी कैविटी है, आपको थोड़ा बहुत सेंसिटिविटी लगता है, आपको लगता है आपका खाना अटक रहा है या फ्रिक्वेंटली जी। खाना फंस रहा है, तो हम्म, एक शायद बहुत छोटा सा रेस्टोरेशन आपको सपोर्ट कर दे और वो आपकी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाए। कभी कभी कैविटीज थोड़ी जी डीप होती हैं, आपको सिर्फ जी ठंडा पानी या ठंडे बेवरेजेस लगेंगे, जैसे जूस जी या पिया हुआ कोला, कुछ भी, ये आपको महसूस हो सकता है। जी तो बट जी गरम चाय कॉफी आपको नहीं महसूस हो रही है, हम्म, इसका मतलब ये जी है सर। कि अभी भी फिलिंग के चांसेस थोड़े से हाई हैं। हम एक हम्म, डेंटिस्ट अपनी तरफ से एक डिसीजन लेते हैं, आपको आपके कुछ एक्सरेज लिए जाते हैं, इस बात का जी डायग्नोसिस होता है कि कितनी डीप हो चुकी है कैविटी, जी और अगर डीप है कैविटी तो उसे भरने की कोशिश की जाती है, उसे रेस्टोरेशन बोलते हैं। जी बट फिर भी अगर आपकी रेस्टोरेशन हो चुकी है और उसके बाद भी ठंडा गर्म लगना बंद नहीं हो रहा है, आपको लगता है कि जी सेंसिटिविटी अभी भी बाकी है, किसी तरह की सूजन, अगर ऐसा मान के चलें कि आपको ठंडा गर्म नहीं लग रहा है बट किसी तरह की सूजन हम्म आ जाती है मसूड़ों में, जो हम्म कि हमें यूजली आभास हो जाता है उस बात का, या हमारे पास छोटी सी फुंसी हो जाती है दांत में, दांत के आसपास जी मसूड़ों में छोटी फुंसी हो जाती है, जी जी हमें जी जरूर डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। इसका जी सर। यूजली इसका कारण ये होता है कि आपने कैविटी तो भर दी, बट दांतों के अंदर जो नसें थी उन्होंने सड़ना शुरू कर दिया। अच्छा, आई जी जस्ट टेक अ बिल्कुल सही। स्मॉल ब्रेक बिकॉज रुद्रा, आपका मोबाइल का एंगल थोड़ा ऊपर करो, वी कैन ओनली सी योर हाफ ऑफ योर ग्लासेस। यस, अच्छा थोड़ा सा अब ठीक है। थोड़ा सा थोड़ा सा नहीं, थोड़ा और, जस्ट हाफ, ये जस्ट स्लाइटली मोर, दिस इज स्लाइटली फाइन। मोर, ओके। slightly more. Yes, या yes, I ओके। guess we'll be able to see now. या So, let's resume it again. तो हम्म जब हम दवाइयाँ ले रहे हैं तो जी मोस्टली डेंटिस्ट फिलिंग करने के बाद भी कुछ कंडीशंस में, क्योंकि दांत बाइट करने पे पेशेंट्स बोलते हैं मुझे राइट। चबाने पे पेन हो रहा है, तो उन एरियाज को रिलीव करने के लिए, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए दवाइयाँ दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने फिलिंग कराई है तो हमें दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर हमने फिलिंग कराई है, दवाई ली है, बट फिर भी आराम नहीं मिल रहा है, हमें दोबारा हम्म, एक बार डेंटिस्ट का रिव्यू लेना चाहिए। बिकॉज ऐसी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि जब हमने कैविटी को क्लीन करा और हमने भरा, उस टाइम पे ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व हो जी या इन्वॉल्व थे, हमें क्योंकि ये
डायमेंशनल, अगर हम एक्सरे भी लेते हैं तो एक 2 डायमेंशनल हमें इमेज नजर आती है, राइट। बट जो नसें होती हैं वो 3 डायमेंशंस में है और कोई भी जी हिस्सा उसमें से इन्वॉल्व हो सकता है। कभी जी कभी बहुत एक्यूट पेन होता है, बहुत सिवियर पेन होता है। हमारे राइट। इंडियन हाउस होल्ड्स में क्लोव ऑयल बहुत इजीली अवेलेबल जी जी जी, है और बिल्कुल हम बिल्कुल। लोगों ने देखा है कि लोग क्लोव ऑयल रख लेते हैं, छोटा सा क्लोव अपने पास रख लेते हैं और दांत से बाइट कर जी लेते हैं। यस, जी इट जी हैज जी बीन प्रूवन कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और इंडियन कंटेक्स्ट में और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर भी कल्चर्स में क्लोव ऑयल को बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किया गया है। डेंटिस्ट्री में आज भी कुछ प्रोडक्ट्स क्लोव ऑयल के एक एक्सट्रैक्ट जिसे यूजनॉल बोलते हैं, हम उसी से बनाते जी हैं। जी इसका जी अपना बेनिफिट जरूर है, बट आपको लगे कि क्लोव ऑयल ही सोल्यूशन है, वो सोचना जी, गलत होगा। हम जब क्लोव ऑयल को यूज करते हैं तो कभी कभी वो बहुत ही बेसिक होता है, यानी अनरिफाइंड होता है, या वो बहुत ज्यादा इंडिजिनस हो सकता है, जिसे हम हिंदी में देसी बोलते हैं। अगर वो जी देसी बिल्कुल। क्लोव का तेल है और हम उसे जी सही तरीके से ना रखें तो मुंह में छाले पड़ जाते हैं या जीभ की तरफ छाले बिल्कुल, पड़ जाते इट हैं, इज ऊपर इट इज तालू इट पे इज वेरी गुड। छाले आ जी जी जाते हैं। जी, बहुत बहुत गर्म होता मेरे है वो। अपने यस, एंड मैंने अपने कैरियर में जब मैं डेंटल कॉलेज में था तो वहाँ की ओपीडी में मैंने बहुत फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व करा कि कुछ लोग अल्कोहल का स्वैब लगा लेते हैं, या अ, जी जी एक गांव था वहां के लोग तो नेल पेंट लगा लेते हैं अगर दांत में दर्द होता है। यस, जी वो ऐसा सोल्यूशन है जो वहां के लोगों ने लोकली डेवलप करा की है। बट अगर उनको डेंटल कॉलेज अल्टीमेटली आना पड़ा या डेंटल हॉस्पिटल अल्टीमेटली आना पड़ा, दैट मीन्स जी, एक डेंटल ओपिनियन तो बनता है। वी शुड पक्की बात गो सर। टू अ डेंटल ओपिनियन। एंड आई वुड सजेस्ट जो लोग इस चैनल को सुन रहे हैं या इस लेक्चर को कभी भी सुने, अगर उनको कोई भी डेंटल प्रॉब्लम आती है तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास, अगर हमारी सिटी में कोई डेंटल हॉस्पिटल या कोई कॉलेज है, हम वहां जा जी सकते हैं। अगर हमें लगता है कि पेन इतना एक्सट्रीम है कि हम बहुत ज्यादा ट्रेवल नहीं कर सकते या हम वेट नहीं कर जी सकते हैं, तो नियरेस्ट डेंटिस्ट या हॉस्पिटल पे जाएं। और जी यूजली डेंटिस्ट हर लोकेलिटी के हिसाब से अवेलेबल होते हैं। आज इंटरनेट का जमाना है, आप अपने लोकल एरिया में अगर गूगल पे या किसी भी वेब सर्विस पे अगर आप सर्च मारते हैं कि नियरेस्ट डेंटिस्ट कहाँ पे हैं, तो आपको डेफिनेटली एक आंसर मिल जाएगा। आप बात कर सकते हैं, आप एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं। एक्यूट पेन जी। किसी भी तरीके से अवॉइडेबल नहीं है और उसका हम्म, कोई भी देसी इलाज यूजली एक्टेड नहीं होता है, मतलब वो काम का नहीं होता है। ये देखा गया है कि अगर एक्यूट पेन में कोई देसी इलाज किया जाए, कोई बहुत बेसिक चीजें लगा जी लें, कुछ लोग सरसों का तेल लगाते हैं या जी बहुत ज्यादा सेंधा नमक लगा लेते हैं। मैं जी वो जी बातें बता रहा हूँ जो मेरे मेरे सिटी के 100-150 किलोमीटर की रेंज में होता है। मैं आज गाजियाबाद जी। में बैठा हूँ, मैं वहाँ के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ग्लोबली हम्म, डिफरेंट चीजें लोग देखते हैं, इंडिजिनस चीजें यूज करते हैं। हमें फोकस ये करना है कि मेरा पेन रिलीफ होना चाहिए, तो डेंटिस्ट जी क्या करेंगे। अच्छा, अगर जी आपने कैविटी की वजह से देखा, आपको समझ में आया कि आपको पेन हो रहा है, तो अब आपको पता है हम्म, कि आपको डेंटिस्ट के पास जाना है। बट और क्या कारण है पेन के? एक कारण है मसूड़ों का खराब होना। जैसे जी जैसे एज आनी शुरू होती है 45 प्लस, जी या जी कुछ जी ऐसे मेडिकल सिचुएशंस जैसे प्रेगनेंसी या जी, हार्मोनल चेंज किसी भी वजह से, हार्मोनल चेंज, कोई राइट। कैंसर पेशेंट्स जो जो किसी तरह का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोई मल्टी ऑर्गन फेलियर जी के पेशेंट्स या लिवर फेलियर या हार्ट के पेशेंट्स जी जो किसी तरह की दवाइयां ले रहे हैं, उनकी वजह से मसूड़ों में सूजन आ सकती है। मसूड़ों जी की सूजन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर रुद्रा खुद हैं, वो आपको ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। बट जी मेरा मानना ऐसा है कि वो भी ऐसे कारण हैं जिनमें दांतों में काफी ज्यादा ब्लीडिंग आती है। अगर आप ब्रश जी, करते हैं तो बिल्कुल भी सही बात। फ्रिक्वेंटली ब्रश करने के बावजूद स्मेल नहीं जाती है, स्पॉन्जी जी हो जी जाते हैं गम्स, आप टच करते हैं तो ब्लड आता है। हमने यूजली एडवर्टीजमेंट्स में देखा है जो टीवी पे आते हैं कि एप्पल खाया और जी, उसमें ब्लड आ गया। ब्लड आ गया, राइट। यूजली इतनी सिवियर ब्लीडिंग सिर्फ नहीं एडवर्टीजमेंट होती है। पर्पज के लिए है। जी जी, बिल्कुल बट सही बात। ब्रशिंग करते वक्त अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो वो भी एक कारण हो सकता है दांत के दर्द का। जब दांतों जी का बेस, यानी हड्डी, जिस जो एक सॉकेट बना हुआ होता है, जी, दांत बिल्कुल। उसके अंदर होता है,
तो ये एक पेड़ और उसकी जड़ें और मिट्टी की तरह काम करते हैं। बट कुछ जी ऐसे बिल्कुल कारण सही। होते हैं जैसे बॉडी में किसी तरह की बीमारी, कोई दवाई जी। खाने का असर, या हम्म। दांतों की गलत तरीके से ग्राइंडिंग होना, मिक्स होना। जी अगर कुछ जी लोग जी जी। जैसे बॉक्सर्स होते हैं या फिजिकल वर्कआउट बहुत ज्यादा करते हैं, तो उनके हम्म। दांत बहुत जल्दी फ्लैट हो जाते हैं। तो जी पॉसिबिलिटी है बिल्कुल। कि जो बोन है जिसने दांत को अंदर से ग्रिप कर रखा है, उसका लेवल जी धीरे जी धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाए और वो कम हो जी जाए, तभी दांतों जी में सिवियर पेन होता है। एक जी। और कारण देखा गया है कि जब इम्पैक्ट स्पोर्ट्स, जिसकी बात हमने की थी कि अगर चोट लग जाए तो राइट। क्या करना है, तो दो चीजें होती हैं। एक ये कि आपको इमीडिएट पता लग जाएगा कि मुझे दर्द हुआ है, बहुत सीवियर दर्द हुआ है। दांत का टूटा जी हुआ हिस्सा या तो हाथ में, मुंह में, जबान के नीचे, लिप्स पे कभी कभी अटक जाता है, जिसे जी। डेंटल ट्रॉमा का नाम दिया गया है। इसमें दांत का राइट। छोटे हिस्से से लेकर बड़े हिस्से तक टूट जाते हैं। अगर बहुत छोटे हम्म। हिस्से जिनमें दांतों का डेंटिन इन्वॉल्व नहीं हुआ है, सिर्फ इनेमल जी या जी सबसे ऊपर की सतह इन्वॉल्व हुई है, तो यूजली पेन का कोई एहसास नहीं आता। बट अगर जी इसमें डेंटिन इन्वॉल्व हो जाए, दांत की नसें इन्वॉल्व हो जाए, दांत का हिस्सा टूट के गिर जाए, या कभी कभी जी। पूरा दांत निकल जाना, जिसे हम साइंटिफिकली अवल्शन। अवल्शन बोलते हैं, अगर ये जी हो जाए, तो हमें पॉसिबिलिटी है कि हमें बहुत एक्सट्रीम पेन। जी ऐसे सिचुएशंस में ये देखा गया है कि अगर नियरेस्ट डेंटिस्ट अवेलेबल नहीं है, तो मोस्टली पेरेंट्स ने चीनी या क्लीन जी करके, कुल्ला करके, कोई कॉटन का पीस रख दिया मुंह में, और वो जी अगले दिन जैसे भी उनके लिए पॉसिबल है वो लोग डेंटिस्ट के पास अप्रोच करते हैं। तो उसकी अलग ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजीज हैं कि हम दांत को कैसे बचा सकते हैं, या दोबारा कैसे फिक्स कर सकते हैं, जी या जी निकले हुए जी दांत को कैसे ठीक कर सकते हैं, या उसमें जी ऑप्शंस अलग। बट वो एक जी एक्सट्रीम पेन का कारण हो सकता है। दूसरी जी बिल्कुल। सिचुएशन, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं या कोई बास्केटबॉल खेल रहा है, या कोई भी ऐसा हम्म। स्पोर्ट जिसमें मुंह पे आके कोई इम्पैक्ट हो जाए, किसी की कोहनी जी लग जाए, किसी का हाथ लग जाए, कोई खेलने वाला इक्विपमेंट लग जाए, या घर में हम्म। जैसे लेडीज काम कर रही होती हैं और आ, आप किचन में काम कर रहे हैं, या कोई वार्डरोब का हिस्सा, कोई ड्रॉर, कभी फ्रिज का कोना, या घर का कोई बर्तन, या बच्चे आपस में फाइट हम्म। कर रहे हैं और कोई चीज किसी को टच हो जाए, तो चोट लगी और हमने जी सिर्फ उस दिन पेन किलर खाया या बर्फ से जी सिकाई करी और आराम मिल गया। बट हम जी इस चीज को बोलते हैं कि ये डिलेड रिएक्शन आता है इसमें, और बिल्कुल दो बिल्कुल। तरीके से वो कन्वर्ट हो जाता है। अगर पेन रुक जाता है तो ऐसा नहीं है कि चोट नहीं लगी है दांत को, जी कभी कभी दांत बेयर नहीं कर पाता उस चोट को। कुछ बिल्कुल। सालों बाद, कुछ महीनों बाद सूजन या किसी तरह की फुंसी पाई गई है। ये भी देखा गया है कि दांत जी हल्का सा हिल रहा है, या आप मसूड़े जी को दबाएंगे तो उसमें से पस निकल रहा होता है। तो जी ये डेंटल ट्रॉमा का ही एक डिलेड वर्जन है, जिसमें दांत को चोट लगी, इमीडिएटली दांत का कोई जी हिस्सा नहीं टूटा, बट एक बहुत पतली सी झिल्ली होती है, जो वाला सॉकेट होता है, उसके बीच की एक झिल्ली जी है जिसपे चोट लगी, जिसे हम जी पीडीएल लाइनिंग या पेरियोडोंटल लाइनिंग बोलते हैं। जब जी इस पे जी चोट बिल्कुल। लग जाती है और इसका इन्फ्लेमेशन डिलेड होता है, तो पस बन जाता है। कभी जी कभी बिल्कुल पस सही बात। बहुत छोटी क्वांटिटी का होता है, बट दांत का कलर चेंज हो चुका होता है। जी और वो ऑन एन एवरेज, जब आप थोड़े बड़े होते हैं और 2-4 साल बाद आप देखते हैं कि मेरा कोई फ्रंट टूथ का कलर चेंज हो रहा है और डार्कन हो रहा है, तो काफी पेशेंट्स हमें उस प्रॉब्लम के साथ भी अप्रोच करते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरा एक दांत काला हो गया है और जी उसको वाइटन कर दीजिए। सिर्फ एक ही दांत या दो ही दांत पीले हुए हैं, या ज्यादा डार्क ब्राउन जी हो रहे हैं, या कॉफी ग्रे कलर हो रहे हैं। बट हम जी उसको जब एग्जामिन करते हैं तो पता लगता है कि कोई ना कोई हिस्ट्री रही होती है चोट की, किसी तरह का कोई जी बाइक बिल्कुल। से एक्सीडेंट, या कोई कार से एक्सीडेंट, या ट्रॉमा, इस पे एक और चीज कुएं बताना से गिर चाहूंगा सर जाना। मैं, हाँ हाँ, कि बताएं। एल्डरली पेशेंट्स में ये बहुत होता है, स्पेशली हार्ट पेशेंट्स में, जिनको काफी बार राइट ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक जिसको हम बोलते हैं, इसमें बेहोशी हो जाती है। तो आपको उस राइट टाइम राइट। पे पता नहीं चलता और आप जबड़े के बल, मुंह के बल गिर जाते हैं। तो गिर जाता उस चक्कर में जो आपने बात बताई वो, क्योंकि ये बहुत लोगों के साथ मैंने, मतलब अलॉट ऑफ माय पेशेंट्स, मेरे पेशेंट्स भी बोले कि एक बार बहुत पहले मैं कभी गिरा था तो लगा था, बट उस टाइम पे दर्द नहीं हुआ, फिर बाद में है। जाके दे स्टार्ट कंप्लेनिंग। जी हम्म। तो अ, मेरा मानना ऐसा है कि
अगर ये 3 सिचुएशंस जैसे कैविटीज या डीप सेंसिटिविटी जिसमें ब्लीडिंग हो रही है गम्स में से, चबाने में परेशानी, या कोई हिस्ट्री जिसमें चोट लगी हो, क्योंकि जो घर में लगी हुई चोट होती है जैसे बॉल का लग जाना, किसी वार्डरोब का कोना लग जाना, या जी कोई कोई सामान रखते वक्त कोई बर्तन लग जाना, कुछ भी हो सकता है। जी जी ये जी। एपिसोड्स कभी कभी हम भूल जाते हैं, बट डेंटिस्ट हम्म, बाद में उसको डिस्कवर कर लेते हैं या हमें बताना पड़ता है अल्टीमेटली। जी जब इस तरह की चोट लगी हुई होती है तो दांतों का कैल्सिफिकेशन हो जाता है, यानी नसें सूख जाती हैं। जैसे जी। हम बोलते हैं कि कॉमन लैंग्वेज है कि हमें पथरी हो गई या हमें गॉल बिल्कुल। ब्लैडर की पथरी हो गई, इसका मतलब ये है कि एक इन्फेक्शन की कोशिश करी और उसकी वजह से वहां पे फाइब्रोसिस हो जाता है। जी वो जी फाइब्रोसिस जी फर्दर कैल्सिफिकेशन में कन्वर्ट होता है, मतलब वो हिस्सा सख्त होता चला जाता है। जैसे जी हम जी कहते हैं कि गिटार बजाने पे उंगलियों के कुछ हिस्से सख्त हो जाते हैं, कुछ इसी तरीके जी। से अगर बार बार चोट लगती है, यस गिटारिस्ट रुद्रा इज हियर, सो ऐसे ही अगर बार बार किसी तरह से इन्फ्लेमेशन होती है या नस, तो जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो उस एरिया को सख्त जी बनाने की कोशिश करती है। ऐसे में दांत के अंदर की धमनियां भी सख्त हो जाती हैं। इसे कैल्सिफिकेशन बोला जी जाता है, कैल्सिफिक मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है। कैल्सिफिक जी मेटामॉर्फोसिस वाले केसेस को ट्रीट करना वाकई डिफिकल्ट है, दोनों तरीके से, जी बिल्कुल। पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर के लिए। डॉक्टर के लिए ट्रीट करना जी इसलिए मुश्किल है क्योंकि बहुत स्लो प्रोसीजर होता है और बहुत स्लोली हम आगे बढ़ सकते हैं। इसमें रिजल्ट्स के चांसेस 50-50 होते हैं। हम बस पूरी लेंथ तक इन्फेक्शन को हटाने का पॉसिबिलिटी जी। नहीं होती है, क्योंकि रुकावट इस हम्म, तरीके से होती है कि हम दांत की धमनियों को नहीं खोल पाते और हम रूट बिल्कुल कैनाल अच्छा बिल्कुल। नहीं कर पाते। तो जी प्रोग्नोसिस यानी उस इलाज का बेनिफिट पेशेंट को सिर्फ 50% ही हो पाता है। ऐसे जी में आप हमेशा अपने डॉक्टर से पूछिए कि कितने चांसेस हैं इसको सेव करने। जी अच्छा, बिल्कुल। मैं और रुद्रा जब डिस्कस कर रहे थे इस इवेंट को, तो एक बात ये थी कि हम पेशेंट के लिए क्या दे सकते हैं इस इवेंट। हम इस इवेंट के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा हम एक इंफॉर्मेशन का पेज क्रिएट करना चाहते हैं, एक इंफॉर्मेशन का लेवल क्रिएट करना चाहते हैं कि पेशेंट के राइट्स क्या हैं। अगर जी पेशेंट बिल्कुल। क्लिनिक में जाता है डेंटिस्ट के पास, तो उसको क्या क्या पूछना चाहिए, वो क्या पूछने के लिए जी एलिजिबल है जब बिल्कुल वो सही एक बात। डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। साथ ही साथ उसकी जिम्मेदारी क्या है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ हक हो किसी चीज पे, उसके साथ साथ जिम्मेदारी भी है। तो अच्छे पेशेंट जी की जिम्मेदारियां क्या है हम वो भी डिस्कस करेंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अ, जी। मेरे ख्याल से हम कितने मिनट्स आगे आ चुके हैं रुद्रा? आई वी कैन आर अभी वी हैव 15 मोर मिनट्स है, मतलब 1 घंटे के स्लॉट के 15 मोर हिसाब मिनट। से। जी जी ओके, जी। तो वी हैव। हम बात करते हैं कि पेशेंट्स के साथ, जब अगर पेशेंट दांत के पेन के साथ क्लिनिक में आते हैं या डेंटिस्ट को दिखाते हैं, तो वहां पे क्या ब्रॉडर पिक्चर है, मैं उसके बारे में बात बताना चाहूंगा। जी। डॉक्टर जब पेशेंट हमारे पास आए और हमने उनसे बातचीत करनी शुरू करी या चेकअप होता है, तो एक डायग्नोसिस हम्म। का लेवल आता है, मतलब हमने चेक किया कि कारण क्या रहा होगा दर्द का। जी मोस्टली जी बहुत विजुअल होता है, इजीली दिख जाता है कि कोई कैविटी थी या कोई कैविटी है या गम्स का लेवल नीचे आ चुका है। जी हाँ, कभी कभी जो बहुत हार्ड चीजों को खाने की कोशिश करते हैं या बॉटल को ओपन करने की कोशिश करते हैं, उनके जी दांत के कुछ बिल्कुल। हिस्से अचानक से टूट जाते हैं। टूट कुछ जाता ऐसी है। टॉफीज होती हैं जो बहुत सख्त होती हैं, जैसे जो कैंडीज होती हैं, जो प्योर शुगर जी कैंडीज होती हैं, कुछ लोगों को बहुत जी शौक होता है खाने का और वो जब मुंह में रखते हैं तो दे हैव अ टेंडेंसी टू बाइट अपॉन। बट जी इन बिल्कुल। सर्टेन केसेस ऐसा देखा गया है कि कभी कभी दांत उस सख्त कैंडी को चबाने की वजह से दो हिस्सों में बांस की तरह दो हिस्सों में टूट गए या फट गए। बिल्कुल। तो वो दांत बाहर से तो दिखता है ऐसा कि इंटैक्ट है बिल्कुल, बट एक डेंटिस्ट क्वालिफाइड होता है इस तरीके से कि उस क्रैक को पहचान सके। या तो वो जी क्रैक एक्सरे में नजर आ जाएगा हमें, या हमारे जी पास बिल्कुल। डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं और हमारे पास ऐसे मेडिकल ग्रेड डाइज होते हैं, डाइज मतलब कलर्स ऐसे होते हैं बिल्कुल। जो उस क्रैक को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। कभी कभी जी क्रैक्स बहुत ज्यादा इनविजिबल होते हैं, मतलब वो बिना माइक्रोस्कोप के नहीं दिखते या जी बिना
एडवांस लेवल के डायग्नोस्टिक एक्सरे के नहीं नजर आते। जैसे एडवांस लेवल जी का जी। मतलब दांत का किया हुआ सीटी स्कैन दांत का, उसे हम कॉमनली सीवीसीटी या कोन बीम हम्म, कंप्यूटेड टोमोग्राफी भी बोलते हैं। उनके थ्रू पता लगता है कि कुछ दांत में ऐसे क्रैक्स हैं जो बिल्कुल। आंखों से विजिबल नहीं है, बट वो किसी माइक्रोस्कोप या वो किसी बड़े एक्सरे में ही नजर आएगा। तो जी ये कारण भी होता है दांत का कि आपने दांत को बाइट करा, वैसे सब कुछ ठीक है, बट जब भी आप बाइट करते हैं या आप कुछ ठंडा पानी लेते हैं तो बहुत एक्सट्रीम पेन होता है। इसमें जी मोस्टली ऐसा देखा गया है कि दांत के अंदर कोई क्रैक। तो जी पेशेंट को क्या क्या जानना चाहिए डॉक्टर? पेशेंट को जानना चाहिए कि उसके पास क्या ऑप्शंस हैं। डॉक्टर जी। या जो भी कंसर्न डेंटिस्ट या स्पेशलिस्ट हैं, वो अपने हिसाब से आपको जरूर बताते हैं कि क्या डायग्नोसिस हुआ है, क्या एक्चुअल कारण क्या है उस पेन का। जी उसके बिल्कुल। बाद हर पेन के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। या हम दवाई से उसको सेव कर सकते हैं। अगर दवाई से आराम मिल जाता है और डेंटिस्ट कहते हैं कि अभी मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, वेट एंड वॉच करना चाहता हूँ, तो ये जी एक पहला रूल हो सकता है, ये पहला पॉइंट हो सकता है। फॉलोड बाय डॉक्टर ये कह सकते हैं कि हम दांत को शायद सेव ना कर पाए और हमें दांत जी को हटाना पड़े, निकालना पड़े, जिससे कि हम इन्फेक्शन बिल्कुल। को कंट्रोल कर सकें और आपके पेन को रिलीफ दे सकें। तीसरा होता है दांत को सेव करने का प्रोसीजर, जैसे दांत की नसों का इलाज, जिसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट बहुत कॉमनली बोला जाता है। तो ये भी एक इलाज है जिसकी वजह से सेव किया जा सकता है दांतों को। और राइट। कम से कम 100 केसेस में 95% केसेस में पेशेंट को आराम मिल जाता है और वही दांत जी अच्छे किए भी रूट कैनाल में 7-8 साल से लेकर 17-18 साल तक आपको सर्व कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितना अच्छा ध्यान रखा। आप एक हम्म, रिस्पॉन्सिबल पेशेंट की तरह कितना आराम से ट्रीटमेंट कराते हैं, कितने आप कंफर्टेबल हैं, फॉलोड बाय आपने हम्म, कितना अच्छा अपना फॉलो अप रखा पेशेंट डॉक्टर के साथ, या जब एग्जैक्टली। जब आपको चेकअप के लिए बुलाया गया तो आप कितनी जी, जल्दी पहुंचे या कितने टाइम पे पहुंचे। यूजली इसमें मैं रुद्रा सर मुझे कुछ ऐड करना चाहता हूँ। यस यस, हाँ, आई वांट टू गेट तो दैट स्पेशल हाँ फॉर्मूला बाय रुद्रा। तो वो तो है ही। प्लस आई ऑलवेज, मैं हर समय सारे पेशेंट्स को अपने ये बोलता हूँ कि देखिए, परसेंट दे देंगे, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, आपका जो भी ट्रीटमेंट किया है उसमें लिटरली हम डेंटिस्ट और हमारे पेशेंट्स लिटरली आधे आधे हकदार है। 50-50% हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ड्यूटी है कि राइट। हमने अपने आप को बिल्कुल जो इंस्ट्रक्शंस डेंटिस्ट ने बोले हैं वो फॉलो करने बहुत जरूरी है। एंड फॉलो अप करना एंड थोड़ा सा प्रोएक्टिव रहना कि हमें कुछ फॉलो अप करना है या इतने टाइम बाद वापस जाके दिखाना है। बाकी सर रूल आप बताइए तो अच्छा लगेगा मुझे। रूल तो मैं चाहूंगा कि ऑडियंस आपसे ही सुने, बट एक कॉमन चीज है जो मैं और रुद्रा यूजली फॉलो करते हैं कि अगर हम कोई गाड़ी चलाते हैं तो उसका एक शेड्यूल है, उसके चेकअप का, उसकी सर्विस का, और उसमें टाइम टू जी टाइम चीजों को चेंज करने का। एक घर में चलता हुआ एसी या माइक्रोवेव या टीवी या कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो बहुत कम घंटों के लिए, 6 से 8 घंटे के लिए इस्तेमाल होते हैं, बट उनका भी अपना एक सर्विस टाइम है। तो जो हमारे ऑलमाइटी ने, हमारे खुदा ने, हमारे भगवान ने हमें इतने सुंदर स्माइल दिए, दांत दिए हैं जो बिल्कुल नेचुरल है, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं। इन दांतों का कोई नेचुरल रिप्लेसमेंट नहीं। सिर्फ दो हम्म सेट आते हैं, एक बच्चों के दांत के जो दूध के दांत कहलाते हैं या मिल्क टीथ कहते हैं, या प्रोफेशनली उसे हम लोग डेसिडियस टीथ बोलते हैं, और जो जी परमानेंट टीथ का सेट है। इसके सिवा हमारे पास और कोई सेट नहीं। जो डेंटिस्ट दे सकते हैं वो एक तीसरा सेट दे सकते हैं आपको, जैसे इम्प्लांट्स या कैप्स हम्म या डेंचर्स, वो एक तीसरा डेंचर माना गया, तीसरा टीथ सेट माना गया। बट उसकी जी मेंटेनेंस भी जरूरी है। अगर आपने कभी भी बहुत। पास्ट में कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट कराया है तो ये आपकी एज अ पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप स्वतः या खुद से जाकर सेल्फ रियलाइजेशन करें, महीने के अंदर अपना डेंटल चेकअप जरूर कराएं पिछले ट्रीटमेंट का, क्योंकि बॉडी बहुत डायनेमिक होती है, इन्फेक्शंस दोबारा जी रिकर कर सकते हैं, कभी कभी कैप्स ढीले हो जाते हैं, फिलिंग्स टूट जाती हैं, और कभी कभी हमारी फूड हैबिट्स होती हैं जो हमारे दांतों को ऑलरेडी नुकसान पहुंचा रही होती हैं। जैसे जी एक कंडीशन है जिसे एनोरेक्सिया बोलते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा हम्म एसिडिटी होती है पेशेंट्स को। उसमें दांतों का हम्म इरोजन जबान की तरफ से या तालू की तरफ से, जो दांत का हिस्सा है जिसे हम पैलेटल या बिल्कुल। लिंगुअल सरफेस बोलते हैं, वहां पे भी हो सकता है।
और उसकी वजह से भी सिवियर सेंसिटिविटी होती है। रूटीन पेशेंट्स में कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो नींबू पानी टच भी नहीं कर सकते, या सिट्रस जी फ्रूट्स जैसे नींबू, संतरा या नारंगी, ये सब मौसमी, ये सब एंजॉय नहीं कर सकते। या इवन कभी कभी आम या चीकू का भी उन्हें बहुत ज्यादा फीलिंग आता है कि पेन हो रहा था, जी मीठा जी रखा जी मुंह में, मीठा खाया, उससे भी बहुत सिवियर सेंसिटिविटी होती है। तो ये जी पेशेंट की जिम्मेदारी है कि अगर उसके साथ कोई स्ट्रेस कंडीशंस चल रही हैं या कोई ऐसा सिचुएशन है जिसमें ज्यादा जोर पड़ रहा है और वो अपने दांतों का जी ध्यान नहीं रख पा रहे, तो दे शुड कन्वे टू देयर डेंटिस्ट। आज की डेट में मॉडर्न इक्विपमेंट्स, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक ब्रशेस इतने सारे हैं, इतनी ब्रांड्स जी के हैं कि अगर आप ध्यान नहीं रख सकते हैं तो माउथ वॉशेस, पेस्ट और ब्रशेस आपका पूरा ध्यान रख सकते हैं। पर्सनल केयर का इक्विपमेंट है वो, और आप डॉक्टर से सीख सकते हैं कि उन चीजों को कैसे यूज करना है, कितना यूज करना है, कब तक यूज करना है। अपने आप जी सेल्फ मेडिकेशन ना लें। तो यस हम भी, वेरी मैं अभी वापस जा रहा हूँ उस टॉपिक पे जिस पे हमने बात शुरू की थी कि पेशेंट को क्या क्या समझना होगा, डॉक्टर क्या क्या करते हैं। तो सॉरी बिकॉज हम थोड़ा सा आउट ऑफ द वे चले गए थे पेशेंट के बेनिफिट्स के लिए, बट यहाँ पे बात करते हैं कि पेशेंट आए, उन्होंने एंटर किया, डॉक्टर ने डायग्नोसिस करना शुरू किया। अगर उन्हें लगता है कि एक्सरे की जरूरत पड़ेगी तो एक्सरे लिए जाएंगे। अगर कोई सर्जरी होनी है तो उसके लिए ब्लड टेस्ट या जो भी एसेंशियल डायग्नोस्टिक जी टूल्स हैं वो किए जाएंगे। पेशेंट समझाया जाएगा कि उसके पास ऑप्शंस क्या हैं, हम दवाई खाएंगे या हम रूट कनाल करेंगे या हम दांत को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको रिहैबिलिटेट करेंगे, यही ऑप्शंस हैं। इसके बाद पेशेंट के को ये भी पता होना चाहिए कि उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट क्या है, कितना बिल्कुल टाइम लगेगा पूरे ट्रीटमेंट को खत्म होने में, और डॉक्टर उसको कब कब दोबारा बुलाएंगे, जो डेंटिस्ट हैं वो उसको कब कब बुलाएंगे दोबारा चेकअप के लिए, और कितने लंबे समय तक ऑब्जर्व किया जाएगा किसी सिचुएशन को। कभी कभी दांतों के अंदर एब्सेस यानी पस की ग्रंथियां बन जाती हैं, और जी डेंटिस्ट अच्छी रूट कनाल करके उन ग्रंथियों को रोक सकते हैं, या रूट कनाल के साथ साथ एक छोटी सी मसूड़ों की सफाई या सर्जरी बोलते हैं उसे, जैसे एपिसेक्टमी बोल सकते हैं, अपाइकल सर्जरी बोलते हैं, उससे करने के बाद कुछ 2 महीने से लेकर 2 साल तक ऑब्जर्व कर सकते हैं, और आपको रूटीनली बुला सकते हैं कि आप इस समय पे आइए और हमें देखना है कि हमारा इलाज आपके लिए सूटेबल है या नहीं। क्योंकि पेशेंट जी की डायबिटिक सिचुएशन और मेडिकल सिचुएशन कभी कभी हमारे दिए हुए ट्रीटमेंट को जी काउंटर एक्ट करती है, और पेशेंट की बिल्कुल इम्यूनिटी कभी कभी नेगेटिव तरीके से इफेक्ट करती है और हमारी जी बॉडी के अंदर के बैक्टीरिया या बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म नहीं होने देती। तो जी बिल्कुल ये देखना जरूरी है कि डॉक्टर कितनी बार आपको बुलाएंगे। फाइनेंशियल एस्पेक्ट इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि आज की डेट में एडवांस ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उसके लिए एडवांस जी ट्रेनिंग होती है डॉक्टर्स की, और इक्विपमेंट भी बहुत एडवांस लगता है। जी अगर हम एडवांस ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो वो अपने साथ डेफिनेटली एक कुछ कॉस्ट लेके आएगा, और जी कुछ ऐसे बिल्कुल ट्रीटमेंट्स हैं जो बहुत मिनिमल हैं और बहुत बियरेबल कॉस्ट हैं। एक बहुत बड़ी मिथ्या है कि डेंटल ट्रीटमेंट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। डेंटल ट्रीटमेंट्स एक्सपेंसिव नहीं है, बट डेंटल ट्रीटमेंट को इग्नोर करना और अपनी दैट बॉडी इज में व्हाट बैक्टीरिया को जी पनपने देना, वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। ये जी कहते हैं कि बिल्कुल डॉक्टर साहब मेरे दांत में इधर की तरफ दर्द है बट इधर भी कुछ परेशानी होती है, तो डेंटिस्ट कभी भी परेशानियों को एक साथ डिस्कस करते हैं। और पेशेंट जी के मन में ये डाउट रहता है कि मैं तो गया इस तरफ के दांत के लिए था और मुझे इधर का भी इलाज बताया गया। बट यकीन जानिए ये वही सिचुएशंस हैं जब एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि साइकिल के 2 पहिए हैं और दोनों में हवा जी होनी जरूरी है, वरना साइकिल का बैलेंस बिगड़ जाएगा। इंसान के जी चलने के लिए दोनों घुटने बहुत जरूरी हैं। अगर एक जी बीमार होगा और दूसरे में बीमारी आएगी तो दोनों का इलाज जरूरी है। एक घुटने का इलाज करने जी से आराम नहीं मिलेगा या पूरी तरह रिकवरी नहीं होगी। तो जी पेशेंट की जिम्मेदारी कहाँ से शुरू होती है? पेशेंट की जिम्मेदारी शुरू होती है सही तरीके से अपने लिए इंफॉर्मेशन लेने से। डेंटिस्ट से अपनी जी बिल्कुल इंफॉर्मेशन लें, अपनी बीमारी को समझें। अगर आपको लगता है कि मन में कोई डाउट्स हैं तो डॉक्टर से दोबारा समय लें कि मुझे अपने डाउट्स जी क्लियर करने हैं या मुझे रिकंसल्ट करना है। अगर उन्हें लगता जी है कि मेरे फैमिली में किसी ने पहले इलाज कराया है और उन्हें उनसे सलाह करनी है, तो पेशेंट उसके लिए फ्री है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट अपने फैमिली मेंबर से डिस्कस नहीं कर सकते, दे ऑलवेज हैव दैट टाइम, वो जी हमेशा कंसल्ट कर जी सकते हैं। सभी लोग
फाइनेंशियल डिसीजंस एक साथ नहीं ले सकते। कभी कुछ लोगों को लगता है कि किसी पर्टिकुलर फैमिली मेंबर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा फाइनेंशियल डिसीजन के लिए, तो जी भी आप बिल्कुल। रुक सकते हैं। बट डिसीजन इतना डिले नहीं होना चाहिए कि दांत का एब्सेस या पेन एक्सक्रूशिएटिंग हो जाए और आपको जी बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजरना पड़े। पहले पास्ट में जी कहा जाता था कि जब डेंटल ट्रीटमेंट्स बहुत ज्यादा एडवांस नहीं थे या दांतों का इलाज नहीं होता था या सभी जगह दांतों का इलाज नहीं था, मान के चलते हैं साल 150 साल 200 साल पहले तक, तो कुछ सर। लोग ये कहते थे कि डेंटल पेन कैन बी अ कॉज ऑफ सुसाइड। यूजली जी मेरे एक पेशेंट हैं जो बहुत पुरानी कहानी बताते हैं कि जब उनके टीचर्स, मतलब उन्होंने कहीं सुना था कि जब टीचर्स पढ़ाते होते थे और उनको पेन होता था, तो जब गुरुकुल टाइम होता था या जब बहुत छोटे छोटे पाठशाला होते थे, तो टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को बोलते थे कि आप मेरे लिए प्रेयर करो कि आई कैन अचीव डेथ, so that I can get relieved out of dental जी pain. It is one of the जी। most excruciating pains of about 17 to 19 decibel, यस। almost equivalent to getting banged in a head, चोट लग हम्म। जाना। जो लेडीज प्रेगनेंसी में एक बिल्कुल ब्लेसिंग वही। है, जब उससे आई गुजर वाज रही कमिंग होती टू हैं दैट तो उस पॉइंट। पेन के इक्विवेलेंट, यस, उस लेवल का पेन क्योंकि हो सकता है। मेरी कुछ एंड देयर आर पेशेंट्स ने टॉप मुझे खुद 7 पेन्स। बताया। यस जी यस। खुद बताया कि दे वन ऑफ माय पेशेंट्स, शी इज अ मदर ऑफ टू एंड शी हैड गॉन थ्रू नॉर्मल डिलीवरीज। उनका यस। रीआरसीटी का एक फ्लेयर अप का केस था। तो जब उन्होंने बताया उनका पेन वापस उठा, उन्होंने जब वो बिल्कुल परेशान होके वो हमारे क्लिनिक पे आई थी, तो उन्होंने यही बात बोली थी कि मेरे 2 बच्चे हो चुके हैं, दोनों की नॉर्मल डिलीवरी थी, मैं लेबर में गई थी, 11 घंटे लेबर में थी, लेकिन मेरे को तब भी इतना दर्द नहीं हुआ जितना जो है इस दांत ने मुझे दर्द कर दिया है। तो दैट इज सम पर्सपेक्टिव। मायोकार्डियल इंफेक्शन, मायोकार्डियल इंफाक्शन जो होता है, तो हार्ट अटैक का पेन होता है, वो भी जी बहुत सिवियर होता है, जो कि शोल्डर जी में मोस्टली एहसास आता है पेशेंट को, जी या कान के पीछे, या टेम्पल जी जोन में बहुत ज्यादा दर्द आता है। जी। तो पेन को झेलना बहुत जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ कुछ एग्जैक्टली। फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर, या हम बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन की कमी, अवेयरनेस की कमी की वजह से कभी कभी जी हाउस होल्ड लेडीज अपने पेन को सबसाइड करने की कोशिश करती हैं। मैंने बिल्कुल। देखा है, मतलब ऐसा देखा गया, पाया गया है कि जब पुराने पेशेंट्स को हम देखते हैं, या हम डेंटल पेशेंट्स जो फीमेल्स हैं और हाउस होल्ड मैनेज कर रही हैं अपना, उनसे अगर पूछा जाए कि हम्म। आपको कब से पेन है, तो दे से कि मुझे 6 महीने से 12 महीने से पेन हो रहा है। जी और आई जी जी आस्क्ड देम बिल्कुल। कि आपने इतना लंबा क्यों क्यों सहन किया पेन को, क्योंकि ये इलाज हम्म तुरंत किया जा सकता था। तो हम्म जैसे कि डेंटिस्ट के पास जाने से डर लगता है, या उनके किसी फ्रेंड ने, या उनके किसी ब्रदर ने, या उनके किसी सिबलिंग ने, या उनके किसी हम्म। फैमिली मेंबर ने डेंटल ट्रीटमेंट कराया था और वो डेंटल पेन और फर्दर बढ़ गया और उन्हें आराम नहीं मिला, तो उन्होंने उसी जी एक्सपीरियंस को अपना एक्सपीरियंस बना लिया और जी उन्होंने अवॉइड करा किसी डेंटल कंसल्टेशन पे जाने जी से। सर। बेटर उनको लगा कि बिल्कुल। मैं अपने पेन को सबसाइड कर लूँ। बट डेंटल पेन को सबसाइड करने से दो बहुत बुरे नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं। एक नेगेटिव इफेक्ट है आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, आप अपना खाना नहीं इंजॉय करोगे। जब भी आप जो खाना खा रहे हो, ठंडी चीजें, मीठी चीजें आप इंजॉय करते हो, सर्दियों के दिनों में चाय पीना, नॉर्थ इंडियंस को ऐसा इतना प्यार है कि चाय पीने से सर्दियों में, कि या कॉफी पीना, जो भी आपका फेवरेट बेवरेज है, या सूप पीना, आप उसको हम्म। अवॉइड करते हो और बिल्कुल। बॉडी हीट को मेंटेन कर सकते हो, लाइफस्टाइल के लिए चीज है। बट डेंटल पेन अगर आप अवॉइड कर को की वजह से आप अपने फूड को अवॉइड कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस क्रिएट करती है बॉडी कि जस्ट बिकॉज ऑफ वन सिंगल थिंग मैं अपना फूड नहीं एंजॉय कर पा रहा हूँ। और अगर बॉडी को फूड राइट। एंजॉयमेंट नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस बिल्डअप करता है। जी प्लीज जान के रखिए, बिल्कुल। बहुत बड़ी चीज है। दूसरा, जब कोई दांत मिसिंग होता है या दांत का कोई हिस्सा टूट चुका होता है और वो बार बार जीभ पे लग रहा होता है, तो छाले आ सकते हैं। या बार बार कोई भी आपने अपना फेवरेट फ्रूट खाया या फूड खाया और वो दांत में हम्म। फंसता है, तो इट बिकम्स अ वेरी, हम बोलते हैं कि फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन होती है कि आप पब्लिकली, आप पार्टीज में नहीं जा सकते, आपको लगता है कि मेरा खाना फंस जाएगा, या मेरे सामने मेरा फेवरेट फूड रखा है और मैं नहीं खा पाता, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे जी दांत में अटकेगा।
ये बिल्कुल। दो कारण ऐसे हैं जो हमारे को साइकोलॉजिकली इफेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको गलत नहीं जी बोल रहा हूँ, बट आप लोग इस बात को वाकई जान के रखिए। ये एक डॉक्टर के एक्सपीरियंस में समझ में आता है। आज मुझे ऑलमोस्ट 20 साल हो गए हैं, हम पिछले 18 साल से पेशेंट्स को सर्व कर रहे हैं। धीरे धीरे जी मैंने अपने टीचर्स से सीखा है, अपने खुद के एक्सपीरियंस को गेन किया है। मैंने हॉस्पिटल्स में काम किया है, मैंने क्लिनिक्स में काम किया है, मेरा अपना क्लिनिक है। मैं डॉक्टर्स के साथ एजुकेशनल प्रोग्राम्स करता हूँ, तो उनके साथ भी हम अपने शेयर करते हैं एक्सपीरियंसेस को। ये जी देखा गया है कि पेशेंट को अगर खाना खाने का सुकून नहीं है, बिल्कुल। खराब रहेगा, बॉवल मूवमेंट्स खराब हो जाते हैं। अगर आपके दांत अच्छे नहीं है, आप अपना खाना जी एंजॉय नहीं कर रहे हो, आप गटक रहे हो अपने खाने को, च्यू नहीं कर पा रहे हो, या आप बहुत दिनों तक अपना फेवरेट फूड नहीं खाओ, तो इरिटेशन डेवलप राइट। होती है। बॉडी पे हर तरीके से इम्पैक्ट आता है। एक बात को ध्यान में लाना चाहूंगा, जिन लोगों का जॉब बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है, जिन लोगों को लगता है कि वो अपने गुस्से को पी जाते हैं, ये बहुत कॉमन चीज है। मैं एक लेमैन की तरह बात कर रहा हूँ, डॉक्टर की तरह बात नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल। सर। इस पॉइंट के लिए जिन लोगों को लगता है कि अपना गुस्सा पी जाना चाहिए, या गुस्से को वेंट आउट नहीं कर पा रहे हैं वो लोग, या किसी तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटी में या माइंड डाइवर्जन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, जी वो बिल्कुल। लोग बहुत जल्दी अपने दांतों को फ्लैट कर लेते हैं। जब दांत फ्लैट हो जाते हैं बिल्कुल तो सही बात। बहुत सिवियर सेंसिटिविटीज होती हैं, और ये देखा गया है कि वो लोग बहुत ज्यादा इरिटेशनल मूवमेंट में रहते हैं। मतलब आप उनसे छोटी से छोटी बात कहेंगे और वो परेशान हो जाएंगे। जी जी तो बिल्कुल। आप बहुत सारे स्ट्रेस से बच सकते हैं, सिर्फ डेंटल ट्रीटमेंट को अच्छा रखिए। पहले जैसे हमारे बड़े बूढ़े कहते थे, दांत हैं तो आंत हैं। नहीं, दैट हाथ मीन्स है, इफ बिल्कुल योर बिल्कुल सही बात। mouth is healthy, your teeth are intact, you can enjoy your food, you can have a very good life. जी पेशेंट बिल्कुल की सही बात। रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ट्रीटमेंट को समझने से लेकर, अपने डेंटिस्ट के पास रूटीनली जाने से लेकर, अ, अपना खुद का ध्यान रखना और अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्थ का ध्यान रखना, वो भी हिस्सा है। बिल्कुल जरूरी सही। नहीं है कि मैं डेंटिस्ट के पास जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट मेरे आसपास के फैमिली मेंबर्स को जरूरत नहीं। दे शुड ऑल्सो जी गो फॉर डेंटल चेकअप 6 months to 8 months इन अ रो। बिल्कुल एटलीस्ट वो बिल्कुल। अगर रूटीनली करें तो बहुत आराम मिलेगा। मैं यहाँ से डॉक्टर रुद्रा को दूंगा कन्वर्सेशन, बिकॉज वो एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बताएंगे कि पेशेंट्स को कितनी बार ब्रश करना चाहिए और कितनी बार डॉक्टर के पास आना चाहिए। इसका एक बहुत सिंपल सा रूल है डॉक्टर रुद्रा का। प्लीज डॉक्टर रुद्रा, टेक इट फ्रॉम हियर। थैंक यू सर। सो बेसिकली एक रूल है जो गणित का जैसे होता है, 3 दूनी 6, 3 into 2 = 6। तो every 3 months आपको अपना टूथब्रश चेंज करना है। और 2 मतलब यू हैव टू ब्रश एंड फ्लॉस ट्वाइस ए डे, 2 बार, एक बार सुबह उठ के और एक बार रात को आपको ब्रश और फ्लॉस करना है। एंड 6 में इफ पॉसिबल आप अपने डेंटिस्ट से बात कर उनसे ट्रीटमेंट को एक चेकअप करवा सकते हैं। इनफैक्ट नाउ डेज इट इज सो इजी टू रीच डेंटिस्ट, अगर आप फोन पे बात करके भी अपने सिम्टम्स बता सकते हैं तो आप जो है यू कैन सीक ट्रीटमेंट। कोई इसमें कोई आपको संकोच नहीं होना चाहिए, कोई एप्रीहेंशन नहीं होना चाहिए। वी आर हेयर टू प्रोवाइड अ सर्विस टू यू। हम आप लोग हमारे अन्नदाता है और हम आप ही के लिए जो है अपना काम कर रहे हैं। So that is what my formula is. This is what I keep on telling my patients. एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे को लोग बोलते हैं कि चाहे मजाक में ही बोलूं, लेकिन मेरे को लोग बोलते हैं कि सर ये डेंटल का खर्चा कितना आएगा। मैंने कहा कि सर उसकी कीमत रुपए में नहीं, उसकी कीमत मिनट में है। 2 मिनट, 2 मिनट्स इज द फीस। आप अगर हर दिन जो है 2 मिनट ठीक से ब्रश करेंगे तो आपको कभी भी जो है डेंटल खर्चा उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोस्टली 90% ऑफ द टाइम इफ यू डूइंग इट राइट। बट देन अगेन उसमें एक और कंडीशन ये आती है कि हम ह्यूमंस हैं और हमारे पास 100% एफिशिएंसी कहीं भी, ये रूल नेचर, वी आर ह्यूमंस, वी आर बायोलॉजिकल स्पीशीज। तो ऑब्वियसली 100% हर जगह नहीं मिलता है। आपका दांतों की भी ससेप्टेबिलिटी होती है, आप प्रोन होते हो केरीज के। बहुत सारे पेशेंट्स के फैमिलीज में ये चीज चलती है कि उनके दांतों में कीड़ा बहुत जल्दी लग जाता है। तो एक ये जेनेटिक फैक्टर भी हमें पता है इस बारे में। तो आपको बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे सर ने बताया कि आपकी ड्यूटी और आपके राइट्स, आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपको अपनी ड्यूटी पता होनी चाहिए। और जैसे सर ने राइटली बोला, दांत नहीं तो आंत नहीं। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है अगर आपके दांत सही नहीं होते।
स्पेशली। और अगर आप देखिए ये चीज बहुत कम लोग इसको तूल देते हैं कि पहले, हालांकि अभी भी जो है, जो पुराने ख्यालात या पुरानी पीढ़ी जो हमारे एल्डर पीपल हैं, उनको अभी भी लगता है कि दांत निकलवा दो, लेकिन उससे उन लोगों को ये चीज समझ नहीं आती, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। तो अगर आप सोचे, अगर मतलब इसके ये लिटरेचर में भी कवर्ड है कि अगर आप किसी के दांत निकाल देते हो तो उनको बार बार एक रिमाइंडर लगता है कि मेरी एज हो गई। चाहे वो चुस्त वैसे जितने भी हो, लेकिन उनको मेंटली एक ब्लॉक आ जाता है कि मेरी उम्र हो गई है, या मेरे दांत ज्यादा गिर गए हैं, या मेरे आगे के दांत गिर गए हैं। ये चीज अगर आप राइट। यंग लोगों से पूछिए कि अगर किसी स्पेशली फीमेल पेशेंट्स जिनके दांत में कभी ट्रॉमा से या कुछ हो जाता है या कुछ हो जाता है, वो उनकी सोशल लाइफ, चाहे बाकी लोगों को फर्क पड़े ना पड़े, उनके कॉन्फिडेंस पे बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि उनको लगता है कि लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मेरा दांत काला देख रहे हैं, या मेरे दांत चिप्ड ऑफ देख रहे हैं, या जो भी है। तो आई थिंक ये चीज पे हमें बहुत तूल देना चाहिए कि दांतों की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, दांत के आसपास के स्ट्रक्चर्स की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज एन ऑर्गन सिस्टम फॉर दैट मैटर। योर इट इज, जो हम बोलते हैं कि ये आपके जो आपका मुंह है वो आपके शरीर का दर्पण है, इट इज अ मिरर ऑफ द बॉडी। राइट। और ये आपको राइट। बहुत साइंस ये आपको बहुत साइंस देता है। इनफैक्ट बहुत जगह हम लोग जो है, डेंटिस्ट, काफी चीजें हम जल्दी पकड़ लेते हैं फॉर दैट मैटर, कि डायबिटीज हम जल्दी पकड़ लेते हैं, कि क्योंकि बहुत पेशेंट्स ये नहीं बताते कि उनको बहुत बार वॉशरूम जाना पड़ता है या प्यास लगती है। लेकिन जिस तरीके से कि अगर हम देखते हैं कि पेशेंट को अगर इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है गम्स में, पेशेंट को केरीज ज्यादा हो रही है, पेशेंट को डीके जो है एक स्पेसिफिक टाइप के एरिया में हो रहा है, उन सब चीजों से हमें पता चल जाता ड्राइनेस है ऑफ कि माउथ, ड्राइनेस ऑफ माउथ बहुत एग्जैक्टली exactly, ज्यादा, जी 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 हेलिटोसिस, ये एक फ्रूटी स्मेल जी जो जी मुंह से आती है। जी जी तो ये सब चीजें हैं जो हम लोग पता कर सकते हैं, और आपके बॉडी के बारे में बहुत सारी चीजें हम बता सकते हैं आपके मुंह में झांक के। तो मेरे हिसाब से तो आपको, यू शुड मार्क योर कैलेंडर्स वंस और ट्वाइस ईयर, जो भी आप बोले, उसमें एक दिन आप कर लीजिए जिसमें आप अपनी फैमिली को लेके जाएंगे कि डॉक्टर साहब आपके जो भी हैं, whichever dentist you choose, we believe that every dentist has this, because we take the Hippocratic oath as well like doctors। तो हमें भी एक चीज, सिंपल सी बात है कि हमारा अंदर इनेट ही एक नेचर है कि हमें आपको सर्व करना है। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर अस। और जितनी खुशी हम लोगों को मिलती है कि आपका पेन चला जाता है और फिर आप फोन करते हो कि डॉक्टर साहब अभी दर्द नहीं हो रहा है, आई थिंक दैट इज म्यूजिक टू आवर ईयर्स, इजंट इट सर? यस यस यस, डेफिनेटली। और बहुत अच्छा लगता है बिकॉज जब हम अपने आप को प्राउडली बोलते हैं वी आर फैमिली डेंटिस्ट, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक या दो पेशेंट्स अपनी फैमिलीज को लाते हैं। इट बिकम्स अ जनरेशन टू जनरेशन रिलेशनशिप। जी बिकॉज अगर हम देखें कि एक यूजुअल डेंटिस्ट का कैरियर 35-40 ईयर्स से लेकर 60 ईयर्स तक हो सकता है। कुछ एजेड डेंटिस्ट हैं जो एट द एज ऑफ 80 ऑल्सो दे आर प्रैक्टिसिंग, दे हैव अ ह्यूज सेटअप एंड दे आर वर्किंग वेरी नाइसली। तो जी जब हम फैमिलीज के साथ जुड़ जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि वी आर ओनली सीइंग देम द टीथ, वी सी द ह्यूमन इटसेल्फ। हम उस पर्सन एग्जैक्टली की पर्सनैलिटीज को और इश्यूज को भी मैनेज करते हैं। तो अगर जी दांत में किसी तरह के कोई ऐसे साइंस हैं जो स्ट्रेस बता रहा है हमें, और जी हमें लगता है कि पेशेंट इज टू मच इन स्ट्रेस, वी कैन आस्क देम टू टेक अ ब्रेक, वी कैन आस्क देम दे नीड अनदर स्पेशलिटी टू मीट। और ऐसा लगता है जी कि दांत जो है वो एक तरीके से आपको, वो बोलते हैं ना कि आपको अगर हम दांत हमने देख लिए पेशेंट के, तो एक एस्ट्रोलॉजर को जैसे हम अपना हाथ दिखाते हैं और बोलते हैं मेरा फ्यूचर क्या है और मेरा पास्ट जी क्या है और मेरा प्रेजेंट क्या होने वाला है, उसमें आपकी पर्सनैलिटी के एट्रीब्यूट्स को ऐड करते हैं और हम कुछ ना कुछ गेज कर सकते हैं आपके लिए। कुछ इसी जी तरीके से बिल्कुल होता है। अगर आपकी डेंटल हेल्थ को हम सोच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, मिरराइज कर पा रहे हैं, और हम उसको आपकी पर्सनैलिटी से ऐड करते हैं, तो हमें जी पता लग जाता है कि क्या आपको फ्यूचर में टेक करो और अपनी स्माइल का बहुत अच्छा ध्यान रखो। जो बिल्कुल डेंटिस्ट इस लेक्चर को सुन रहे हैं उनके लिए एक बहुत छोटा सा मैसेज है। हम लोगों ने देखा है कि काफी जगह कॉर्पोरेट्स में या अच्छे ऑफिसेज में हम एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का टैग देते हैं, या कि इसने सबसे अच्छे टारगेट्स निभाए या इसने बहुत टाइमली चीजें करी, जो भी है। हमें अपनी प्रैक्टिसेस में पेशेंट ऑफ द मंथ को भी हाईलाइट करना चाहिए। दैट मीन्स
जो पेशेंट का बिहेवियर, उसका अटेंशन, जी उसका उस पेशेंट का अपनी हेल्थ की तरफ, अपनी डेंटल हेल्थ की तरफ पूरा फोकस जी होना, जी आपकी बातों को पूरे अच्छे से सुनना, अगर आपने उन्हें कोई टाइम शेड्यूल दिया है चेकअप का, उसको टाइमली निभाना, उसको अप्रिशिएट करना आना चाहिए डेंटल पेटर्निटी को। बिल्कुल हम बिल्कुल इतने बिल्कुल बिजी हो सही। जाते हैं या हम उतना अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं अच्छे पेशेंट्स को। बट by God's grace, I have been told by my teachers to appreciate my patients also, who come on time, जी who respect your time, who respect your OPD. They behave very properly in your ambience. They behave very जी cordially to बिल्कुल your staff also. They हम्म, make their payments on time and everything. Matlab, it is just not about जी payments, but बिल्कुल it is about the entire attribute of being जी available on बिल्कुल time, सही बात। behavior, their everything. So, and uh, I guess that gives us a huge, huge amount of satisfaction that बिल्कुल if a practice has over a period of 5 years, it has 100 families that are attached to that बिल्कुल practice. Uh, it gives us immense pleasure to work day and night, and we can focus more on the passion that towards dentistry that we all have. So बिल्कुल I बिल्कुल guess the time was limited, and I wanted to discuss so many things. There are so many points related to dental pain, but टाइम भी बिल्कुल छोटा है और बिल्कुल सीखना भी सबको है, बहुत थोड़ा सा टाइम है। तो मैं गुजारिश करूंगा रुद्र से कि दोबारा एक और सेशन रखें, और श्योर बहुत सर, सारे नॉट अ क्वेरीज अगर प्रॉब्लम, आ वी कैन जाएं तो कीप इट। we'll work upon all those queries बिल्कुल and I बिल्कुल would love to talk. As you guys can see, यस मुझे बहुत पसंद है, मैं तो रुद्रा के थ्रू पूरी दुनिया से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो पेशेंट सुन रहे सर हैं हमें उनकी ब्लेसिंग्स चाहिए, और हम चाहते हैं कि वो अपना रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाएं और टाइमली अपने डेंटिस्ट को दिखाएं। मैं भी अवेलेबल हूँ, बिल्कुल रुद्र भी अवेलेबल हैं अपनी अपनी जी फैसिलिटीज में। बिल्कुल बट अगर आप हमें बहुत बिल्कुल दूर सुन रहे हैं, आप गाजियाबाद नोएडा के बियॉन्ड हमें सुन रहे हैं, तो हम ये चाहेंगे कि आप अपने डेंटिस्ट को फ्रिक्वेंटली दिखाएं, मतलब एटलीस्ट 6 मंथ्स में एक जनरल चेकअप कराएं अपना, और जी कुछ भी बिल्कुल डिजीज अगर प्रोसेस में है तो उसको रोकने की कोशिश करें। इट विल हेल्प यू फाइनेंशियली, बिल्कुल बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग, यू आर यूजिंग योर टीथ 24/7, so बिल्कुल बिल्कुल सर। you have to be very cautious about it. यस Rudra, any other बिल्कुल point you wish I should cover now सर, before आप we नहीं, आई आई थिंक सर वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ ग्राउंड, एंड एज यू ऑलरेडी सेड कि डेंटल पेन इतना बड़ा टॉपिक है जिसको हमें खुद पढ़ने में 9 साल लग जाते हैं। तो yeah बट सर बहुत इंफॉर्मेटिव ये सेशन रहा है, एंड आई वुड बी ऑनर्ड अगेन टू schedule a time where we can talk about other causes of dental pain, other causes, other complaints also we can do। A lot of times मेरे को ये भी sensitivity के भी बहुत क्या कहते हैं पेशेंट की क्वेरीज आती हैं, और जैसे आपने बोला कि there is a lot of ground to cover, and why I initiated this whole thing in the first place was जो ओरल हेल्थ चैनल का ये एक आप मेरी तरफ से एक मिशन ही मान लीजिए कि मिशन एक तरीके से ये है कि दैट आई वांट दैट वी शुड डू समथिंग as a greater good, that every household in India should probably at the end of maybe a decade or 2 decades is should be aware of oral health कि हाँ हमें चेकअप कराना है। This is something which is sounds very बहुत 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 दूर की सोच साउंड करती है, लेकिन वी हैव टू टेक अ स्टार्ट समवेयर, एंड दैट वाज द right रीजन कि मैंने ये शुरू किया है चैनल। और मुझे लगता है कहीं ना and कहीं हम जी please continue so that I can go on to the तो next point. तो ये बस एक चीज है कि आप मैं अगेन एक डिस्क्लेमर हर किसी को देना चाहता हूँ जो हमारे दर्शक देख रहे हैं कि आपको हम जितना भी समझाएं, जैसे भी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब बहुत फुली क्रेडिबल रिसर्च है। बट आपका जब भी आपको दर्द हो या कुछ भी हो, प्लीज गो टू अ लाइसेंस्ड रजिस्टर्ड मेडिकल और डेंटल प्रैक्टिशनर। डू नॉट सेल्फ मेडिकेट, आई विल कीप ऑन रिपीटिंग दिस। मेरे पास बहुत पेशेंट्स ये बार बार आके बोलते हैं कि मैंने फलानी दवाई खा ली, हर किसी को पता है वो दवाई कौन सी है जो रामबाण इलाज करती है, लेकिन आप 3 महीने बाद फिर उसी सिचुएशन पे वापस आ जाओगे। एक सिंपल सी Right. बात है कि आपने It can जो be है life threatening. एग्जैक्टली exactly, जो ये मैंने खुद केसेस देखे हैं सर ड्यूरिंग आवर कॉलेज टाइम्स। आई हैव सीन केसेस ऑफ
Ludwig's angina, and it is not a good condition to be in. वो ये जनरली जो पेशेंट्स हैं उनको लगता है कि हाँ हम लौंग या इलायची या क्लोव जो भी आप डालना चाहो वो डाल सकते हो, लेकिन कोई भी चीज जो है और इसका एक मैकेनिकल इलाज, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दांतों का एज वेल एज मसूड़ों का। जब तक हम मैकेनिकली अंदर नहीं घुसेंगे तब तक हम उसकी जड़ तक नहीं पहुंच सकते। प्लस आपने जैसे बोला कि हमारा जो रिलेशन है एक एक्चुअली में बहुत इंटीमेट रिलेशन है, लिटरली इंटीमेट रिलेशन है, बिकॉज वी हैव आवर हैंड्स इन योर माउथ, राइट। एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स आई वांटेड टू कवर कि आजकल कोविड महामारी के चक्कर में हम लोग थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने पेशेंट्स को कि थोड़ा सा लिटरली अपने वर्ड को जिए कि पेशेंट रहें, क्योंकि हमें आपकी हेल्थ की भी थोड़ी सी फिक्र रहती है। हम अपने क्लिनिक्स को वैसे ही नई गाइडलाइंस के हिसाब से इक्विप कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वी आर ट्राइंग टू टेक अ लिटिल बिट स्टेप बैक कि आप पहले ये महामारी की थोड़ी द बिगर प्रॉब्लम इन द होल सिनेरियो इज स्लाइटली सेटल्स डाउन, तो इसलिए जो है यू हैव टू स्लाइटली बेयर विद अस, हल्का सा हमारे साथ थोड़ा सा कोऑपरेशन करने की जरूरत है। हम आपके लिए 24/7 अवेलेबल है वाया फोन, वाया सोशल मीडिया, तो वी आर ऑलवेज ऑन कॉल फॉर यू। And sir, I would request you to conclude the session with some wise words and messages for our watchers and viewers. अच्छा, तो 22 वर्ड से पहले एक सिचुएशन याद आ गई। जी, कुछ पेशेंट्स हो सकते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और वो ये कहें कि मैं डेंटिस्ट के पास गया, मेरे डेंटिस्ट ने मुझे रूट कनाल बताया और मैंने रूट कनाल करा भी दिया, बट राइट, कुछ महीनों बाद, मे बी 6 मंथ या मे बी अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मुझे दोबारा से उसी दांत में सेंसिटिविटी हो गई है, गर्म ठंडा लग रहा है या मुझे दांत में पेन रहता है। आई मस्ट से कि रूट कनाल जब हो रही होती है वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, दांत की नसें बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं। कभी कभी आप हमारा दिया हुआ इलाज जैसे रूट कनाल के दौरान यूज करी दवाइयाँ या जो सामान हम यूज करते हैं उसको यूज करने के बावजूद, क्योंकि वो वर्ल्ड क्लास मटेरियल होता है जो हम यूज करते हैं और वो प्रूवन होता है, तभी हमारे बॉडी की इम्यूनिटी कभी कभी हमारे ट्रीटमेंट का साथ नहीं निभाती है और वो दांत का ट्रीटमेंट दोबारा देखना चाहिए। जैसे हम अपने बच्चों का टेस्ट दोबारा ले लेते हैं कभी कभी, या कॉलेजेस में जो बच्चे सही परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं उनको हम दोबारा एक चांस देते हैं। तो अगर किसी दांत का रूट कनाल हुआ है पास में और अगर उसका टूथ स्ट्रक्चर सफिशिएंट है और उसको सेव किया जा सकता है, तो ऑलवेज एक सेकेंड ओपिनियन, एक स्पेशलिस्ट की ओपिनियन जरूर लें कि क्या वो दांत प्रीवियस रूट कनाल के बाद अभी दोबारा सेव किया जा सकता है या कुछ और ईयर सर्व आपको करेगा या नहीं करेगा। अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने दांत को बचा लेते हैं, बिकॉज मदर नेचर ने जो हमें दांत दिया है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हम लोग ह्यूमंस हैं, हम शार्क्स नहीं हैं कि हमारा दांत जाएगा और नया सेट ऑफ टीथ आ जाएगा। हमारे पास सिर्फ 2 सेट है, एक डेंटिस्ट हमें तीसरा सेट दे सकता है बस। तो आज की डेट में 2020 में जैसे आज on this Sunday in the June 2020, what we can say is डेंटिस्ट्री बहुत एडवांस है और आपको बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अपनी सेम कंडीशन के लिए। आपको अपना ट्रस्ट और अपना टाइम पेशेंट को, अपना जो पेशेंट है उसको अपना ट्रस्ट और अपना टाइम देना है, डेंटिस्ट की बात समझनी है और ऑप्शंस समझने हैं कि मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है और आप चूज कीजिए। आपको सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जानने का हक है कि अगर मैंने ये चूज किया तो क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है, ये ट्रीटमेंट कितने साल काम करेगा मेरे लिए, वो भी जरूरी है। रिस्क और बेनिफिट, क्या बेनिफिट मिलेगा मुझे कितना आराम मिलेगा इस इलाज से और कितना रिस्क हो सकता है अगर मैं ये इलाज लेता हूँ। आपको ये सब ऑप्शन अगर आपने एक बार रिज्यूम कर लिया और आपको समझ में आता है कि ये सब सही है मेरे लिए, यू शुड टेक अ वाइज डिसीजन। एंड एक्सपीरियंस के साथ साथ डॉक्टर की एनर्जी और बॉडी लैंग्वेज भी बता देती है कि वो बिल्कुल क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर कोई डेंटिस्ट आपको बता रहे हैं कि वो आपका ये वाला इलाज पर्टिकुलर नहीं कर सकते, तो मोस्ट डेंटिस्ट एक सीनियर डेंटिस्ट के पास या एक बड़े डेंटल
हॉस्पिटल या बड़े डेंटल सेटअप में आपको रेफर कर सकते हैं जहाँ पे ज्यादा बड़ी सुविधा अवेलेबल होगी या वो मशीन अवेलेबल होगी जिससे वो इलाज पॉसिबल है। तो इस बात से ना घबराएं कि मुझे डॉक्टर ने किसी और सिटी में रेफर कर दिया है और बिल्कुल। मेरा इतना बड़ा इलाज तो नहीं है, सिर्फ दांत ही तो है। जी मेरे एक जी बहुत अच्छे फ्रेंड है, वो बोलते हैं कि भगवान ने हमें दो आंखें दी हैं और अगर आंख में कुछ हो जाए तो क्या हम अपनी आंख निकलवा देंगे? हम बोलेंगे एग्जैक्टली, लास्ट मोमेंट बिल्कुल तक सही बात। मेरी आंख को बचाइए, मेरी रोशनी को बचाइए। भगवान ने बिल्कुल 32 बिल्कुल दांत जरूर दिए हैं, बट दांत निकालना सोल्यूशन नहीं है। अगर उसे बचाया जा सकता है तो कोशिश करनी चाहिए डेंटिस्ट को, और पेशेंट को एफर्ट जी करना चाहिए कि वो अपने डेंटिस्ट को रिक्वेस्ट करें कि आप मेरा टूथ सेव करें। बाकी जी। डिसीजन ऑलवेज विद पेशेंट्स हैंड। हमेशा मेरी प्रैक्टिस patient बिल्कुल is the person who decides the treatment. बिल्कुल We can give options, and whatever best we can do, we will do it for them. But ultimately, patient ही फाइनली डिसाइड करते हैं कि उनके लिए क्या बेस्ट है। हम ऑप्शंस दे सकते हैं बस। तो बिल्कुल। लेट्स होप कि हम दोबारा किसी एक और बढ़िया से वीडियो सेशन में मिलें, और अगर श्योर टेक्नोलॉजी हमें अलाउ करेगी तो हम लोग एक लाइव सेशन करने की कोशिश करेंगे इन स्टूडियो लाइक एनवायरनमेंट, जहाँ पे हम उसे रिकॉर्ड श्योर कर सकें आपके लिए एक वन ऑन वन सेटअप, बिल्कुल और हम अपने यूट्यूब चैनल्स या इंस्टाग्राम के थ्रू आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल जब हम ये टेलीकास्ट कर रहे हैं इसके तुरंत बाद मेरे क्लिनिक के डिटेल्स और रुद्रा के क्लिनिक डिटेल्स एंड सोशल मीडिया अकाउंट्स के जो डिटेल्स हैं वो सारे ऑडियंस तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल कोशिश ये है कि आप लोग हमें प्रोत्साहन दें, और हम इस तरह के जो भी इनिशिएटिव्स हैं हम उन्हें आगे ले जाएं और ज्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स को हेल्प कर सकें। That is the clear intention that we have with this program. So बिल्कुल। Rudra, I must say God should bless you for this initiative, for starting थैंक यू something सर। for the benefit of the patient. And I am always available for any sort of topic that includes my specialty, or my experience can give a slight bump to this entire situation. Right? So just hope for this COVID situation to settle down, and the यस routine patients can have an access to their dentist. And बिल्कुल। let's hope for the best of the things in this world. यस यस। Yes. All right. So we will finally conclude this session. Thank you, sir. Thank you so much for Thank you gracing for this inviting occasion. me. बिल्कुल सर, और हम अभी वापस थोड़े दिन में वापस फिर मिलेंगे किसी टॉपिक पे, ठीक है? Right, तो definitely. thank you for everyone who has been watching this live session. We will be back soon with other experts and other sessions with Dr. Vaibhav. Thank you so much for Right. watching. Thank Have you. a good day. Thank you.